محبت کی دہلیز پر بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خاندان دن کے وقت اپنی حویلی سے نکل چکا تھا۔ سب علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں تھے۔ شہروز اور ان کی بیگم لیلا الگ تھے اور ندا، پلوشہ، امائمہ اور رازان الگ گاڑی میں تھے۔ درمیان میں یہ دو گاڑیاں اور ان کے آگے اور پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب؟ کچھ نہیں بیگم، بس آپ پہ پیار آ رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ کوئی گستاخی کر دوں۔ توبہ توبہ، کتنے بے شرم ہو گئے ہیں آپ، اور آگے دیکھ کر گاڑی چلائیں۔ اس میں بے شرم ہونے والی کیا بات ہے؟ بیوی ہیں آپ میری، اور میں پورا حق رکھتا ہوں جو مرضی کرنے کا۔ جو مرضی کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ابھی بتاتا ہوں۔ شہروز صاحب آگے بڑھ کر لیلا بیگم کے ہونٹوں پر پیار نچھاور کر کے جلدی سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیلا بیگم شرمانے لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں بیگم، ایسے نہ شرمائیں ورنہ یہی کچھ کر دوں گا۔ شرم کریں، جوان بچے ہیں ہمارے، اور ہم بھائی کی حویلی جا رہے ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ بچے جوان ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ میں رومانس کرنا چھوڑ دوں، اور جہاں تک احتیاط کی بات ہے، کوشش کریں گے۔ کوشش نہیں کریں گے؟ کیا مطلب ہے بیگم آپ کا؟ مطلب آپ سب کے سامنے رومانس کرنا چاہتی ہیں؟ شرم کریں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن آپ، استغفر اللہ، کتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپ۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ کوشش نہیں کرنی بلکہ لازمی احتیاط کرتی ہیں آپ۔ ایک تو پوری بات نہیں سنتے۔ اچھا بیگم، اب آپ کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ادھر رازان بیچارہ سر پکڑے ہوئے تھا کیونکہ اس کی چھوٹی بہن جارم کر کے اس کا دماغ کھا گئی تھی۔ امائمہ، تمہیں شرم نہیں آتی بڑے بھائی کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کیا مطلب ہے بھائی جان؟ میں نے ایسی کون سی بات کر دی جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ یارم کی، پلوشہ شوق انداز میں کہتی ہے۔ تم سے بھائی نے پوچھا؟ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ نہیں، یہ کب سے یارم کی شان میں قصیدے تو میں پڑھ رہا تھا نا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی امی جان نے تم دونوں کو میری گاڑی میں کیوں ڈال دیا؟ ندا ہی ٹھیک تھی، تم دونوں سے سمجھدار تو ہے نا۔ دیکھیں بھائی، کچھ بھی ہو جائے، یارم کے بارے میں کچھ بھی نہیں برداشت کروں گی۔ اب تو پلوشہ بھی بول پڑی تھی۔ کیا مطلب ہے بھائی آپ کا کہ میری گاڑی میں ڈال دیا؟ ہم کوئی چیز ہے؟ آپ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے۔ ارے میری پیاری سی شہزادیوں، میں تم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، بس ابھی تم سب بول رہی ہو اس لیے کہہ رہا تھا، اور اس کا یارم سن کر تنگ آ گیا تھا، بس اس لیے۔ اور آئندہ یہ نہ کہنا کہ آپ ہم سے پیار نہیں کرتے۔ رازان خان کی جان سے زیادہ عزیز ہو تم سب بھائی، لیکن یارم سے آپ جلتے ہیں، یہ مان لیں، اور آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ امائمہ کہتی ہے، او ہیلو، میں کیوں جلوں گا تمہارے مطلب یارم سے، اور یہ زیادہ پرسنل نہ ہو۔ اچھا، پہلے ندا کی، ویسے بڑا تو میں ہوں، لیکن کوئی نہیں، پھر میری، دین پلوشہ کی، اور پھر تمہاری باری آئے گی تو تم سپنے ہی دیکھو یارم کے۔ ارے عالیہ بیگم، کہاں ہیں آپ؟ جی کامل صاحب، یہی ہوں، میں کچن میں تھوڑا کام دیکھ رہی تھی۔ کبھی ہمیں بھی دیکھ لیا کریں۔ کامل صاحب، ہر وقت آپ کو ہی دیکھ رہی ہوں۔ بیگم، اب جھوٹ تو مت بولیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کہاں؟ آپ سے تو بس باتیں کروا لو۔ چلیں لاؤنج میں چل کر بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آریان کی فلائٹ کب ہے۔ جی چلیں پوچھتے ہیں، میرا بھتیجا کب آ رہا ہے، پتہ نہیں سدھرا ہے کہ نہیں۔ شام کے وقت سب باہر سین میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں باہر کچھ گاڑیاں رکنے کی آواز آتی ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے لیلا آ گئی۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اتنے میں آواز آتی ہے، ماموں۔ احمد صاحب کہتے ہیں، لو جی، آ گئی ہماری چہیتی، اور امائمہ آ کر احمد صاحب کے گلے ملتی ہے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں ماموں؟ میں بھی ٹھیک میرا بچہ۔ ماموں، آپ بچہ کیوں بول رہے ہیں مجھے؟ کیوں، یہ آریان ہی بول سکتا ہے صرف؟ آریان بھائی ابھی بھی مجھے بچہ بولتے ہیں؟ ہاں تو تم ہو جو بچہ۔ باقی سب بھی ملتے ہیں۔ کیسی ہے ہماری بہن؟
जी भाई मैं ठीक, आप दोनों कैसे हैं? हम भी ठीक। और मेरी दोनों भाभियाँ कैसी हैं? हम भी ठीक। आप कैसी हैं लैला आपी? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ अनाया की तो हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही होती। वो तो ये सोच रही होती है कि उमायमा भाई को भाई बोल रही है, तो भाई के मुंह पर बोलेगी तो मेरे बेचारे भाई का क्या हाल होगा। राजान अनाया के सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाता है और कहता है, ये छोटी पटाखा अब किसको तंग करने का प्लान बना रही है? भाई कैसे हैं आप? और मैं क्यों भला किसी को तंग करूंगी? क्योंकि तुम्हारे उमायमा और परवश शाह के दिमाग में सिर्फ यही बातें चलती हैं, अच्छे से जानता हूँ मैं। अब ऐसी भी बात नहीं है, कभी कभी इंसान को सीरियस भी हो जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सीरियस? और तुम लोग हो ही ना जाओ। जी मेरी बहन। शहरोज भाई क्या बात करनी थी आपको? शहरोज साहब कहते हैं, हमें बच्चों के बारे में बात करनी थी कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जी भाई मैं भी बात करना चाहती हूँ कि हमारी निदा बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर दी जाए तो। जी मेरी बहन हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर बच्चों से पूछ लें? नहीं भाई बच्चों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। फारिस कहता है, फुफ्फो ये किन बच्चों की बात हो रही है, हमें भी तो पता चले। अरे बेटा तुम्हारे बड़े भाई ज़ियान और निदा की। आलिया बेगम और कामिल साहब भी कहते हैं, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं। और आलिया बेगम कहती हैं, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। लैला बेगम कहती हैं कि भाई आर्यान ने कब आना है, फिर निकाह की डेट फाइनल करते हैं। हमना बेगम कहती हैं कि वो रात के खाने के टाइम आ जाएगा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर हफ्ते बाद की डेट रख लेते हैं। और ये दूल्हा साहब के दर हैं जिनकी शादी की बात हो रही है, सब इस डेट पर हामी भरते हैं, वो बस आता ही होगा। हमना बेगम कहती हैं। इतने में गाड़ी की आवाज़ आती है और ज़ियान आता है और सबको सलाम करता है। कैसी हैं फुफ्फो? मैं ठीक, मेरा बच्चा कैसा है? उमायमा हंसते हुए कहती है, भाई मुबारक हो, आपका वक्त आ गया है। शट अप उमायमा, नेता कहती है। अच्छा अभी आप तो अभी से ही उधर की हो गई। एक तो नावल पढ़ पढ़ कर ये बहुत तेज हो गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हमना बेगम कहती हैं। अच्छा फुफ्फो आप बताएं कि क्या बात है? मेरा बच्चा अगर आपसे कुछ कहें तो आप मानेंगे क्या? जी ज़रूर फुफ्फो, आप कुछ बोलें और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा बेटा हमने आपके और निदा के निकाह का फैसला किया है, क्या आपको कबूल है? जी फुफ्फो जैसे आपकी मर्जी। माशाल्लाह मुझे पता था कि मेरा बेटा मुझे इनकार नहीं करेगा। आप भी और भाई अब एक दूसरे की तरफ देखकर शर्माते ही ना रहिएगा। उमायमा हंसते हुए कहती है, शट अप उमायमा। निदा और ज़ियान एक साथ बोलते हैं, वाह क्या प्यार है, देखा अभी एक साथ जवाब। माँ कहती है, अच्छा सब अब इतना ज़्यादा तंग न करना बच्चों को। शहरोज साहब बोलते हैं, इतना रात के खाने का वक्त हो जाता है। आलिया और हमना बेगम खाने की तैयारी कर रही होती हैं, कितने में दो हैंडसम नौजवान कदम से कदम मिलाकर अंदर दाखिल होते हैं। सब उठकर खड़े होते हैं। अहमद साहब और हमना बेगम सबसे पहले आर्यान से मिलते हैं और फिर बाकी सब बारी बारी मिलते हैं। अनाया उमायमा से कहती है कि अब बोल क्या बनता है यार, यारम काज़मी जैसी पर्सनैलिटी लग रही है। हाँ होगा प्यारा, बट यारम तो यारम ही है ना। आर्यान फिर लैला बेगम से प्यार से मिलता है, अब होने वाली सास को भी पटाना है ना। कैसी हैं फुफ्फो? मैं ठीक, कैसा है मेरा बच्चा और सुधरा है कि नहीं? आर्यान कहता है, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। तू कभी नहीं सुधर सकता। सबसे मिलने के बाद उसे अब उमायमा को मिलना था। वो लैला बेगम से पूछता है, वो उमायमा कहाँ है? और वो जो सबके पीछे छुप के खड़ी होती है, ड्रामा क्वीन। ज़ियान उसे पीछे से निकालता है और उमायमा से कहता है, अब मेरा बदला पूरा हुआ जो शाम को मेरे साथ किया था ना बेटा। और उसे आर्यान के सामने खड़ा करता है। हमना बेगम कहती हैं कि खाना लग चुका है, सब आ जाएं। ज़ियान फरहान को उसका कमरा दिखाने ले जाता है। हमना बेगम आर्यान से भी कहती हैं कि फ्रेश होकर आओ खाने की टेबल पर। आर्यान शुक्र करता है कि सब खाना खाने चले गए। उमायमा भी चुपके से जा रही होती है।
आर्यन उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उमायमा का सर उसके दिल के मकाम पर आ लगता है। आर्यन प्यार से कहता है, कैसा है मेरा बच्चा? अब तो और ज़्यादा प्यारी हो गई हो। इतना इंतज़ार किया मैंने आपसे मिलने का और आप अभी मुझसे मिलने बगैर जा रही थी। मेरा ज़रा ख्याल नहीं आया आपको। कैसे हैं आर्यन भाई? उमायमा घबरा कर कहती है। आर्यन उसको अपने और करीब कर लेता है और उसके कान के करीब झुक कर कहता है, खबरदार उमायमा, जो आपने मुझे भाई कहा तो मैं आपका भाई नहीं हूँ, आई समझ? और आइंदा ये मत कहना वरना अच्छा नहीं होगा। आर्यन उसको अपने और करीब कर लेता है और उसकी शहरक पर प्यार करता है। उमायमा का सांस बंद हो रहा था। वो डर कर उसको पीछे करती है और कहती है, आर्यन पीछे हो, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा सांस बंद हो रहा है और आप ये क्या कर रहे हैं? आर्यन छोड़े मुझे, आपको कोई हक नहीं है मुझे ऐसे छूने का। ये लो, छोड़ दिया। लेकिन मेरी एक बात ज़ेन नशीन कर लो उमायमा खान, तुम पर मेरा पूरा हक है और तुम सिर्फ मेरी हो। आइंदा ये न सुनूं तुम्हारे मुंह से, नहीं, आप सिर्फ मेरे भाई हैं दूसरों की तरह। खबरदार उमायमा, ऐसा कहा भी तो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ यारम से प्यार करती हूँ। वो पैर पटकती चली जाती है। आर्यन को उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो किसी और का नाम ले भी कैसे सकती है उसके सामने? उमायमा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और कौन है ये यारम? उसको तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा। वो गुस्से से दांत पीसते कहता है। उमायमा, आर्यन कहाँ है? उमानी, वो फ्रेश होने गए हैं। इतने में फरहान भी आ जाता है। अरे आओ बेटा, बैठो। और हाँ, इसे अपना ही घर समझता है क्योंकि अब तुम हमारे साथ ही रहोगे ना? अहमद मलिक कहते हैं। लेकिन अंकल मैं, लेकिन कुछ नहीं, चलो खाना शुरू करो। शाबाश। थोड़ी देर बाद आर्यन अपना गुस्सा ठंडा किए आता है। आर्यन, चलो आओ खाना खाओ, बैठो। नहीं फुफ्फो, पहले आप ये बताएं कि ये यारम कौन है? इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ मैं। इस पर सबके कह के गूंजते हैं। तो तुम्हें भी पता चल गया? देखे भाई, मैं यारम के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे आप? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है कि मुझे भाई मत बोला करो, और खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो तुमने, वरना अच्छा नहीं होगा। गुस्से से कहता है। अरे आर्यन मेरा बेटा, बैठो, गुस्सा ना करो, ये इसके नावल का हीरो है, लैला बेगम कहती हैं। और तुमने ये क्यों कहा कि ये तुम्हें भाई न बोले? हाँ, वो रिलैक्स होता है। वो फुफ्फो, मैं जान गई हूँ मैं सब कुछ, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकती आर्यन। अभी के लिए बता दूं कि अगले हफ्ते तुम्हारे भाई और मेरी बेटी निदा का निकाह है और तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। फिर भाई, क्या ख्याल है आपका? लैला बेगम कहती हैं, मेरा मानना है कि बच्ची अभी छोटी है और बड़े अभी बैठे हैं, तो अभी सिर्फ उनके निकाह पर मंगनी रख लेते हैं। क्या? लेकिन मैं तो, या उमायमा बोलती है। वो भी कुछ बोलने ही लगी होती है कि हमना बेगम कहती हैं, हो सकता है मेरा बेटा ज़्यादा रोमांटिक निकले। सब हंस पड़ते हैं। पारिक हो आर्यन, फरहान कहता है। शुक्रिया, और फुफ्फो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इतना तो कर ही सकती हूँ। अब लाई मीठा चच्ची, अब तो बनता है, आर्यन कहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फुफ्फो, इसको बता दे आइंदा मुझे भाई ना बोले। सुन लिया उमायमा, आइंदा भाई ना बोलना। लेकिन मम्मा, लेकिन कुछ नहीं, शादी कुछ अरसा बाद होगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपनी दोस्तों को भी बुलाऊंगी। वो पल में बदलती है। हाँ हाँ, बुला लेना। और मम्मा, मैं, राजान भी बोल पड़ता है। अरे भाई, हौसला रखो, तुम्हारी शादी इनसे पहले ही होगी। और भाई मेरे गिफ्ट्स? अनाया कहती है। लाया हूँ, सुबह दूंगा। जी भाई। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उमायमा जैसे ही बेड पर लेटती है, दरवाज़ा यकदम से खुलता है। आर्यन अंदर दाखिल होता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। आप इधर क्यों आए हैं मेरे रूम में? किसी ने देख लिया तो? और लॉक क्यों लगाया है? कितना बोलती हैं आप, और सब सो गए हैं।
कोई नहीं देखता। और बाहर क्या मामा कह रही थी कि यारम से मैं ज्यादा रोमांटिक हूँगा, मतलब आप गंदे नॉवल पढ़ती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई गंदे नॉवल नहीं पढ़ती, और उसमें अच्छी बातें हैं कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कैसे प्यार करता है? क्यों? आपको क्यों बताऊं कि कैसे प्यार करता है? फिर आपने कोई हरकत कर दी फिर? और वैसे भी वो आपसे ज्यादा हैंडसम और प्यारा है। आर्यन का दिल कर रहा था कि कुछ कर दे। अच्छा, तो उस नावल में तस्वीर लगी है या फिर खुद ही तुमने सोचा है? जी नहीं, उसमें लिखा है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। और आप अब मेरे कमरे से बाहर जाएं आर्यन भाई। खबरदार, तुम फुप्पू ने बताया है ना कि मुझे भाई ना बोलना, फिर भी बोल रही हो। हाँ, बोलूंगी। वैसे भी हमारी कौन सी शादी हो गई है, और मैं यारम पसंद करती हूँ। हाय, कितना हैंडसम है वो। अच्छा, तो तुमने जुबान ना बंद करने की कसम खा रखी है, तो फिर मैं ही कर देता हूँ। ये कहते ही वो बेख्तियार उसके लबों पर झुक जाता है। कुछ देर झुके रहता है और फिर खुद ही पीछे हटता है। हाँ जी मेरा बच्चा, तो कैसा लगा फर्स्ट रोमांटिक किस? आप कितने गंदे हैं और क्यों किया आपने ये, मैं सुबह सबको बताऊंगी। अच्छा, मैं तो गंदा हूँ, लेकिन आपको ये सब पढ़ते हुए शर्म नहीं आती, तो फिर मुझे क्यों आए? और खबरदार, जो किसी को बताया तो ऐसी बातें नहीं बताते, गुनाह मिलता है। अच्छा, तो आपको ऐसा करते सवाब मिल रहा है? हाँ जी, जो शादीशुदा होते हैं ना, ऐसी बातें अपने तक रखें तो सवाब मिलता है। नॉवल पढ़ती हो, इतना नहीं पता? हाँ, मुझे भी लगता है ऐसे, क्योंकि वो भी नहीं बताते ऐसी बातें किसी को। आर्यन के लिए हंसी कंट्रोल करना मुश्किल था। अगर आप कहें तो आज मैं आपके पास हो जाऊं? नहीं, क्यों? आपको शर्म नहीं आती? निकले मेरे कमरे से, चलें। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, ऐसा ना करें। नहीं, जाएं आप भाई। माए माँ, वो गुस्से से कहता है। अभी तो आप भाई हैं ना। वो आर्यन को कमरे से निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।